गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आप लोगों का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के जो सिलेबस है उसके हिसाब से आप लोगों का पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 छुक छुक गाड़ी। छुक छुक इट्स अ साउंड ऑफ अ रेल। इट्स अ साउंड ऑफ अ रेल অর্থাৎ ট্রেনের একটি শব্দ হচ্ছে ছুকছুক। ছুকছুকটা কিরকম শব্দ? আগেকার দিনে যে স্টিম ইঞ্জিন চলতো দ্যাটস কল্ড ছুকছুক গাড়ি। অর্থাৎ যে গাড়িটি ইঞ্জিন ট্রেন থেকে বা চলে এখান থেকে ধোঁয়া বেরোয় इसको বলা হচ্ছে ছুকছুক। ইটস আ সাউন্ড। তো দেখছে কি আছে গল্পে। रोमा और रीवा के घर से रेल की पटरी दिखाई देती है। रोमा और रीवार घरेर থেকে রেলের पटरी মানে হচ্ছে रेल लाइन দেখা যেত। दोनों खिड़की के पास बैठकर अपना खाली समय रेलगाड़ी देखकर और छुक छुक सुनकर बिता देती थी। তারা অবসর সময় জানলা থেকে খিড়কি মানে জানলা থেকে বসে তারা রেল গাড়ি এবং তার ছুকছুক আওয়াজটা শুনে দিনটা কাটিয়ে দিত। नेक्स्ट पैरा। एक शाम दोनों बहनें खिड़की से बाहर देख रही थी। एक दिन সন্ধ্যেবেলা দুজনে জানলার বাইরে দেখছিল। अचानक रोमी बोली किसने बनाई होगी रेलगाड़ी। हठात তার মনে উৎসাহ জাগলো কে রেলগাড়ি বানিয়েছে। पास में ही बैठी उनकी दादी बोली। ওদের কাছে বসে থাকাদের দিদা দাদি মানে দিদা বলেছিল आओ आओ बच्चों मैं तुम्हें बताती हूँ कि रेलगाड़ी किसने बनाई। আমি তোমাদের বলি রেলগাড়ি কে বানিয়েছে। বোঝা গেছে? চলো নেক্সট পেজ। लेट्स सी। बरसों पहले इंग्लैंड के एक शहर में एक गरीब बालक रहता था। বহু বছর আগে ইংল্যান্ডের একটা গরিব ছেলে বসবাস করত। उसका नाम था जेम्स। যার নাম ছিল জেমস। पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता था। পড়াশোনায় তার মন বসতো না। वो शैतानी में बहुत करता था। वो অনেক দুষ্টুমি করত। एक बार जेम्स ने रसोई घर से आती एक विचित्र सी आवाज सुनी। রান্নাঘর থেকে এক অদ্ভুত ধরনের আওয়াজ কিন্তু সে শুনতে পেয়েছিল। বসে আছে দেখছো রান্নাঘরে আওয়াজ পাচ্ছে। उसने देखा कि चूल्हे पर एक केतली में पानी उबल रहा है। সে দেখলো যে রান্নাঘরে একটা কেটলি আগুনের উপরে জ্বলছে এবং তার থেকে জল টকবক করে ফুটছে। केतली का ढक्कन खटखट की आवाज के साथ उठ गिर रहा था। এবং যত গরম হচ্ছে তত সেই কেটলির ঢাকনাটা বারবার উঠছে বসছে। वो कुछ डर सा गया। হঠাৎ ও একটু ভয় পেয়ে গেল। तभी उसकी चाची ने वहां आ गई। সঙ্গে সঙ্গে তার চাচি বা কাকিমা ওখানে চলে এসেছিল। जेम्स के रसोई घर में बैठा देखकर चाची ने उसको फटकारा। রান্নাঘরে বসতে দেখে জেমসকে বকা দিল। फटकारा মানে হচ্ছে বকা দেওয়া। হ্যাঁ। और कहा और বলেছিল पढ़ने लिखने में तुम्हारा मन नहीं लगता। পড়াশোনায় তো তোমার মন বসে না। तुम काम चोरों की तरह यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो। তুমি এখানে ফাঁকিবাজদের মতো বসে কি করছো। नेक्स्ट पे। जेम्स की दृष्टि तो केतली पर थी। কিন্তু জেমসের নজর তো কেতলির দিকে ছিল। দেখতেই পাচ্ছ কেতলির দিকে নজর। उसने चाची की बात तो सुनी। वो चाची বা কাকিমার কথা শুনেছিল। वो हैरानी से केतली की ढक्कन को उठता गिरता देख रहा था। কিন্তু অদ্ভুতভাবে সেই কেটলির যে ঢাকনাটা বারবার উঠতে বসতে সে দেখছিল। नेक्स्ट पैरा। उसे लगा हो ना हो कोई ताकत अवश्य ढक्कन को उठा गिरा रहेगी। সে ভাবছে এই যে ঢাকনাটা এই ঢাকনাটা নিশ্চয়ই কোনো শক্তি আছে যার ফলে উঠছে আর নামছে। ये बात बचपन में जेम्स के मन में बैठ गई। এই কথাটা ছোট্টবেলা জেমসের মনেই বসে গেছিল। जेम्स जब बड़ा हुआ जेम्स যখন বড় হয়েছিল तो उसे भाप की शक्ति की ध्यान में रखकर उसने भाप का इंजन बनाया। এবং যখন বড় হলো তখন সেই যে ভাপ ইঞ্জিনের ভাপ সেই ভাপটার কথা মাথায় রেখেই কিন্তু সে কি করেছিল সেই ইঞ্জিনটা কিন্তু বানিয়েছিল।
भाप की शक्ति से इंजन बड़ी बड़ी रेलगाड़ी को दूर दूर स्थानों तक পৌঁছা দেতা है এবং সেই বাষ্পচালিত ইঞ্জিন কিন্তু সেই শক্তির ফলে অনেক দূর দূর পর্যন্ত কিন্তু ট্রেনকে নিয়ে যায়। सोचो जेम्स की बचपन की उत्सुकता ने कितनी बड़ी खोज कर डाली। তাহলে ভাবো ছোট্টবেলা জেমসের মনের সে উৎসাহ কত বড় জিনিসের একটা আবিষ্কার করে ফেললো। এবার এই লাইনটা কি আছে দেখি, सच है कार्य करने की लगन ही আবিষ্কার को जन्म देती है। অর্থাৎ এটা এই কথাটা সত্য যে কোনো কিছু কার্য কারণের পিছনে যে পরিশ্রম করলেই কিন্তু আবিষ্কার হওয়া সম্ভব, আবিষ্কার হয়। लेट्स सी द वर्ड मीनिंग। वैचित्र माने की अनोखा, स्पेशल, अजीब বা অদ্ভুত যেটাকে বলি। फटकारा माने बौका, स्कोल्डेड, डांटा। कमजोर माने যে काम से जो चुराने वाला, अर्थात যে কম কাজ করে বা ফাঁকিবাজ। দেন লাস্ট দৃষ্টি মানে নজর। ওকে, চলো এবার এক্সারসাইজটা একটু দেখে নিই আমরা কি আছে। ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনগুলো তো আমি পিডিএফ এ দেবই তোমাদের, তাও দেখা যাক কি আছে। रोमी और रीवा के कमरे की खिड़की से क्या दिखाई देता था? रेलवे की पटरी और चुक रेलगाड़ी। जेम्स रसोई घर में क्या क्यों गया? जेम्स रसोई घर में गया और देखा केतली का ढक्कन उठता और गिर रहा था। केतली के ढक्कन से कैसी आवाज आ रही थी और क्यों? केतली के ढक्कन से खटखट आवाज आ रही थी क्योंकि वो उठ रहा और गिर रहा था। नेक्स्ट, दादी ने रोमी और रीवा को किसके बारे में बताया? रेलगाड़ी के बारे में। चाची ने जेम्स को क्या फटकारा कि वो पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं है, कामचोरों की तरह वो रसोई घर में बैठा हुआ है। जेम्स केतली के ढक्कन को हैरानी से क्यों देख रहा था? क्योंकि जेम्स के मन में लगा था कि कोई ऐसी शक्ति है जो उस केतली के ढक्कन को उठा रही और बैठा रही थी। जेम्स ने बड़े होकर किस चीज का आविष्कार किया? जेम्स से बड़े होकर क्या किया? बताओ कोई कौन बता सकता है? भाप की शक्ति से चलने वाला रेलगाड़ी। नेक्स्ट, सही उत्तर का चिन्ह लगाओ। जेम्स कहाँ का रहने वाला था? ऑब्वियसली इंग्लैंड। रेलगाड़ी की आवाज कैसी होती थी? छुक छुक। भाप में क्या होती थी? शक्ति। भाप का इंजन क्या आविष्कार किसने किया? जेम्स ने। अच्छा, यहाँ पे वैसा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, जस्ट यहाँ तक पढ़ लो। अच्छा, ये चीज थोड़ा इम्पोर्टेंट है बहुत, ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे वैज्ञानिकों का नाम है, यहाँ पे उनका आविष्कारों का नाम है। बाएं तरफ देख रहे हैं जेम्स का वॉट, थॉमस एडिसन, पर्सी सैम्पसन, चार्ल्स बैबेज। तो जेम्स वॉट ने क्या आविष्कार किया था? जेम्स वॉट ने ये किया था इलेक्ट्रिक बल्ब। थॉमस एडिसन ने क्या किया था? पहले देखते चार्ल्स बैबेज ने क्या किया था? कंप्यूटर। ठीक है, थॉमस एडिसन ने क्या किया था? सॉरी, यहाँ पे सही आंसर ही दिया हुआ है। जेम्स वॉट ने इंजन आविष्कार किया था, थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब आविष्कार किया था, पर्सी सैम्पसन ने माइक्रोवेव आविष्कार किया था, चार्ल्स बैबेज ने कंप्यूटर आविष्कार किया था। ये सही उत्तर दिया हुआ है, इसने ये आविष्कार किया था। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, माइंड इट, इसको याद करना है। जेम्स वॉट ने इंजन, थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब, पर्सी सैम्पसन ने माइक्रोवेव एंड चार्ल्स बैबेज ने कंप्यूटर को आविष्कार किया था। तो आज का क्लास यहीं तक है। पढ़ो, कोई समस्या हो तो मुझे ग्रुप में बोलो।